Hello, student. Uh, Previous lecture we have discussed about the numerical number one. Just I will share the screen first so that we can discuss it more properly. Okay. So where we have seen how to calculate the number of speeds, then structure diagram, then you can say speed diagram और ray diagram. स्पीड डायग्राम रे डायग्राम दोनों एक ही होते हैं, तो आप ये ड्रॉ कैसे ड्रॉ करना है ये आप लोगों को पता है. देन गियर लेआउट. ओके, then we need to, okay, we was calculating the gears, number of teeth on gears on each stage. So first stage we have discussed. Now going for the second stage. So second stage, with the reference with the, we are referring same procedure as we referred in stage number one. We will use to determine the number of teeth in stage 2. For stage 2, the input speeds are 680 rpm and 480 rpm. If we look at the speed ray diagram or speed diagram, for stage number 2, the input speeds are 480 and 680. Okay, so these are the two inputs for stage number 2. Okay, and this would be the speed of gears C, D and E. Okay, which is shown in gear layout. So ZC dash divided by ZC is equal to NC divided by NC dash. We know the speed of highest speed is 480 and lowest speed is 120. So the speed ratio is 4, or you can say uh, value of I is equal to 4, transmission ratio is 4. So N6 and N2, or you can say N6 and or N2. Look at the diagram shown over here. Okay, so here you can say N6 or N2. These are the, here the output of this 680 has three outputs. First 680 itself, second 340, and last one or lowest one is N2, that is 170. Okay, so in a second stage, these three are the outputs of first one, and second one N5, that is 480, then N3, that is 240, and N1, that is 120 rpm. Okay, so these are the outputs. Now based on that outputs, we are here actually calculating the transmission ratio. If you looking for N6 and N2, similarly we get transmission ratio is equal to 4. Then for next one, next speed, that is for second one 480 and 240. Okay, so here the transmission ratio is 2. With the second one, that was the 680 and 340. So similar transmission ratio is 2. And for third stage, 480 divided by 480, that is 1. Here the 680 divided by 680 is equal to 1. So all the transmission ratios are equal for both. So from above, the largest gear ratio in this case is CC dash. Hence the number of teeth on these gears should be determined in the case the pinion would be sorry, in case the pinion would be gear C. Okay, so here uh, small pinion, that should be a C, and C dash would be the gear. So hence referring figure number 3 and figure number 5, let the number of teeth on gear C is equal to ZC. Okay, so using same transmission ratio, we have calculating the number of teeth over here. So for C, minimum number of teeth are 18. Okay, transmission ratio is 4. So 18 multiplied by 4. So the number of teeth on
C dash is equal to 72. Okay, so for similarly for D, the equations are shown over here. Okay, so D dash is equal to twice of dz. So here by the transmission ratio, number of teeth on that is 30, transmission ratio is 2, so number of total teeth are 60. Third one we have considered it's a 45, so z transmission ratio is 1, so z ze dash is equal to 45. As the number of each stage are different, because if we design same gear sizes, then it will difficult to shifting the gear. So that's why we are considering the different z values for different uh, gear and pinion. Okay, so from the chart you can find out the relations. ZE is equal to 2.5 ZC, ZD is equal to 1.66 ZC. So similarly here we can calculate the value. Okay, so rather than using this one, you can use this one also. So first of all you need to calculate the actual relation between each. Okay, so if you consider ZC is equal to 18, ZC dash is equal to 4 ZC, so 72, ZC plus ZC dash is equal to 90. Okay, now what is the criteria for that? The summation of all gear pinion should be equal. So for gear and pinion C and C dash, the summation of the number of tooths are 40. No, sorry, extremely sorry, it's 90. Okay, so let's see for D. So D ZD is equal to 1.66 ZC. That it's calculated up to the 30. Okay, so 30. Then ZD dash is equal to twice of ZD, that is 60. 30 multiplied by 2, that we can directly get 60. So 30 plus 60 is equal to 90. Okay, so this is acceptable. Now with respect to the ZE, now ZE is equal to 2.5 times of ZC. You can refer this where we have calculated. Actually what we did, the basic criteria is that ZE plus ZE dash is equal to ZD plus ZD dash is equal to ZC plus ZC dash. This is a main equation. Okay, that we have to satisfy. Now we know that ZC is equal to 4 ZC, ZD dash is equal to 2 ZD, and ZE dash is equal to 1 ZE. So these criteria, by considering two different equations, we can find out the actual relation between two gears. Okay, and based on that we are calculated over here, and that should be drawn over here. Okay, so this diagram should be below this one. Okay, इसके नीचे आना चाहिए था, वो मैंने ऊपर ड्रॉ किया है. Okay, so ultimately ZE is equal to 45 मिल गया, and ZE dash is equal to ZE. So 45 is equal to 90. So whatever the number of teeth on each gear and pinion we have calculated, that satisfy the criteria. Okay, and this is a acceptable case. So from the table it is shown the number of teeth on gear for stage number 2. ZC is equal to 18, ZC dash is equal to 72, ZD is equal to 30, ZD dash is equal to 30, ZD is equal to 30, and ZD dash is equal to 60. ZE 45, ZE dash is equal to 45. Okay, so these are the final number of teeth for a gear. Okay, so
that much you have to calculate to solve such problems. Okay, so here further if you want to design a gear, the basic number of teeth on gear we have calculated, other dimensions we can calculate, uh, so that you can select a material, you have to select type of gear. Okay, so that process we can do, and we have already learned that process in machine design 2, how to do how to design a gear. Okay, so one more thing we will discuss now. So first problem is over here. Now one more thing I would like to share you, some structural diagram and their gear layouts. So it is in few students maybe get difficult to understood what actually is happening over here. Okay, so for that I would like to show you some standard structure diagram and the gearbox layouts. Okay, so let's see one by one. First of all, this is a structure diagram for 2 into bracket 1, 2 into bracket 2. So here the value of P1 is equal to 2, value of X1 is equal to 1, value of P2 is equal to 2, and value of X2 is equal to 2. So what is mean by value of P and value of X? So value of P decides the output number of outputs, or you can say ये वैल्यू जो है ये डिसाइड करती है कि जो हम इनपुट ले रहे हैं उससे आउटपुट कितना निकलेगा. ओके, तो यहाँ पे ये बेसिक इनपुट है, दिस इज अ बेसिक इनपुट. ओके ओके, स्टेज 1 के लिए ये वाला हमें यूज करना है. तो इसमें क्या दिखा दिया है कि इनपुट जो भी है, जितना भी एक इनपुट है उसको उसके आउटपुट रहेंगे 2. ओके, अभी 2 आउटपुट कितने स्पेसिंग में देने हैं, ये स्पेसिंग का डिस्टेंस रहता है, जो ब्रैकेट में जो वैल्यू रहता है दैट इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, एंड इट इंडिकेट वो हमें दिखा बताता है कि कितना स्पेसिंग वो दोनों आउटपुट में रखना है, मतलब गियर का स्पेसिंग कितने डिस्टेंस पे रखना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टूड दी प्रॉपरली. ठीक है, तो 2 दिया है, तो इसका मतलब है ये नंबर फर्स्ट जो भी मोटर का स्पीड है हमको उसको मैं फर्स्ट इंडिकेशन देता हूँ, तो उसका जो आउटपुट है वो आउटपुट कितने आने वाले हैं, 2 आउटपुट आने वाले हैं. सो और वो 2 में से स्पेसिंग कितना होना चाहिए, 1 स्पेसिंग. सो दिस इज आई कैन से स्पेसिंग 1. if you say 2, that much 2 and that much 3. okay, so इसके हिसाब से हम लोग स्केलिंग करते हैं to draw properly. if you want you can scale it properly. तो ये स्पेसिंग मैंने समझ लिया कि एक सेंटीमीटर है, और x स्पेसिंग x1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि स्पेसिंग 1 होना चाहिए. इट कुड बी 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, it's totally depend what scale you are taken. So I'm taking that much distance is the value unit, its value is 1 unit. Okay, so I first draw 2 point to find out a proper unit value. Okay, तो 1 यूनिट पे मैंने ये 2 मार्क्स इंडिकेट मार्क और 2 पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए. नाउ सिंपली we need to join these 2 points. okay, जैसे हमने ये 2 पॉइंट ज्वाइन के लिए कर दिए, तो हमारा फर्स्ट वाला जो है ये वाला खत्म हो गया. अभी दूसरा, तो यहाँ पे अगर देखोगे 2 स्टेप्स हैं और हमने 3 लाइंस वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए हैं. पहली जो वर्टिकल लाइन है इनपुट शाफ्ट की है,
दूसरी है वो इंटरमीडिएट शाफ्ट की है, और तीसरी जो लाइन है वो आउटपुट शाफ्ट की है। ओके, सो इसमें कितने स्टेजेस आते हैं? 2 स्टेजेस, स्टेज नंबर 1 एंड स्टेज नंबर 2। तो इसका जो भी है वो यहाँ पे इंडिकेशन होता है। नाउ वी आर गोइंग फॉर स्टेज नंबर 2। अभी स्टेज नंबर 2 पे क्या है कि ये जो 2 पॉइंट्स है, अभी मैं रेड से इसको इंडिकेशन देता हूँ। सो दीज आर नाउ आवर इनपुट पॉइंट्स। ओके, तो इसको मैं ए और बी कहता हूँ। सो नाउ फॉर दिस स्टेज नंबर 2, ए एंड बी आर द इनपुट स्पीड्स और इनपुट पॉइंट्स। तो उसके कितने हमें आउटपुट निकालने हैं, ये वाली जो वैल्यू है P2 की वैल्यू, ये मुझे बताएगी कि इसके में मुझे कितने आउटपुट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे वैल्यू है 2, तो हर एक से 2 आउटपुट निकलने वाले हैं। ओके, और स्पेसिंग कितना रहेगा, ये वैल्यू जो बताएगी जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो वैल्यू मुझे बताएगी कि उन दोनों में स्पेसिंग कितना होना चाहिए। ओके, सो लेट्स मार्क्स फर्स्ट पॉइंट। हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट अपना ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये वाला ड्रॉ कर लिया। अभी यहाँ से स्पेसिंग कितना आना चाहिए, 2 स्पेस। सो इट्स अ फर्स्ट यूनिट, सेकेंड, सो दिस मच इज अ 2 स्पेस, 2 यूनिट वैल्यू, 2 यूनिट स्पेस। तो यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल गया, तो मैंने ये यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। नाउ आई हैव टू जस्ट ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये एक मिल गया। अभी मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो यू कैन अंडरस्टूड फॉर सेकेंड वन, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट अपना बी पॉइंट जो है, तो ये बी पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, पहले ये बी पॉइंट, ठीक है। सो बी पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे कि अपने पास ये जो सेकेंड पॉइंट है अवेलेबल, तो इसको पहले हम लोग ज्वाइन करेंगे so that we can able to utilize the space available. Now again वहां पे कहा गया है कि 2 स्पेसिंग का डिस्टेंस होना चाहिए, तो यहाँ से लेके ये 2 यूनिट का डिस्टेंस हमने कंसिडर कर लिया, x इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 2, तो ये डिस्टेंस हमने कवर कर लिया। नाउ अगेन वी गेट अ पॉइंट ओवर हियर, ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे। It is very simple to draw a structure diagram if you understood it properly, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया अपना स्ट्रक्चर डायग्राम फॉर 4 स्पीड, एक इनपुट और 4 आउटपुट। सो इसको क्या कहेंगे हम लोग, 4 स्पीड। नाउ लेट्स सी इसके गियर्स कैसे बनेंगे, ठीक है। सो इनिशियली इट्स अ 1 इनपुट, ओके, 2 आउटपुट्स है, तो उसका मतलब है 2 ही वेरिएशन आने वाले हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गियर्स जो है वो हमने पहले 2 लिए है सो दैट इट कैन इजीली प्रिपेयर प्रॉपरली। ओके, तो यहाँ पे 2 है। अभी इसमें से ये वाला जो गियर है, गियर नंबर ए डैश ए, दिस इज अ फिक्स वन, एंड गियर नंबर जो बी है दैट इज अ रोटेटिंग वन, ठीक है, वो स्लाइड होता है हल्का सा। तो क्यों स्लाइड होना चाहिए, और यू कैन से बोथ दिस होल असेंबली इज अ स्लाइडिंग वन। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसको जब मैं इस डायरेक्शन में स्लाइड करूंगा, इस डायरेक्शन में, तो ये जो है इस पे माउंट हो जाएगा, मतलब गियर नंबर ए और ए डैश ये एक दूसरे के साथ एंगेज हो जाएंगे सो दैट इट विल क्रिएट वन स्पीड, ठीक है। देन बी बी के साथ कनेक्ट हो गया तो सेकंड स्पीड मिल जाएगा। देन सिमिलरली बी डी के साथ कनेक्ट हो गया तो अनदर स्पीड मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है, ये दोनों ए डैश और बी डैश, ये जो स्पीड यहाँ पे क्रिएट करेंगे उतने ही स्पीड सिमिलर आरपीएम जो है वो सी और डी में रहेगा। तो जैसे ही सी सी डैश से ज्वाइन करेगा तो अपना थर्ड स्पीड बनेगा, थर्ड स्पीड मिल जाएगा, और जैसे डी 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 डैश के साथ ज्वाइन हो जाएगा और मैश हो जाएगा, वैसे ही अपने को
चौथा स्पीड मिल जाएगा. So in this way the all four speeds can be generated. Okay, so let's see second one. Okay, यहाँ पे देखो 3 1 2 3, तो कितने आउटपुट्स आएंगे? फर्स्ट नोट इट डाउन. सो इट्स 2/3, सो इसके टोटल आउटपुट आने वाले हैं 6. यहाँ पे 3 है, वेट अ मिनट, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है. सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, सो ये 6 स्पीड का स्ट्रक्चर डायग्राम है. तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6. Okay, so output speeds are 6. So let's elaborate one by one. So first of all, the spacing. What about the spacing? The spacing is very important one. यहाँ पे जो स्पेसिंग दिया है तीन में वो एक का स्पेसिंग दिया है. टोटल स्पेसिंग इज गिवन 1. ठीक है, तो हमने क्या किया है? फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिया है, फर्स्ट पॉइंट सेंटर में लिया है, सेकेंड पॉइंट ऊपर फर्स्ट और इसमें. तो ये 3 पॉइंट्स मैंने इनिशियली मार्क कर लिए. आई कैन ज्वाइन दिस 3 पॉइंट्स. ओके, तो इससे क्या हो जाएगा? अपना ये वाला जो है ये कंप्लीट कर दिया. दैट इज द स्टेज नंबर 1. अब स्टेज नंबर 2 पे जाएंगे हम लोग. तो स्टेज नंबर 2 पे क्या है? हर चीज का, हर इनपुट के कितने आउटपुट है? 2 आउटपुट है. यहाँ पे 3 आउटपुट थे, हमने 3 निकाल लिए. तो यहाँ पे हर पॉइंट के 2 आउटपुट निकालना है और इसमें स्पेसिंग कितना है? 3. तो पहले से ही आप 6 स्पीड पता है, तो 6 लाइंस आप प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल लाइंस कंसिडर कर लो. ठीक है, तो 6 लाइंस मिल गए, आपको निकालने पड़ेंगे. सो फर्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट हमने ले लिया जो सबसे टॉप लाइन हाई स्पीड पे रहेगा. ठीक है, देन दूसरे लाइन में और फर्स्ट लाइन में कितना डिफरेंस होना चाहिए? तो 3 का डिफरेंस है. तो 1 2 3 लाइन, तो ये हो गया अपना सेकेंड पॉइंट. तो अपना जैसे हमें था कि हर एक लाइन से 2 आउटपुट निकलने वाली है. तो ये फर्स्ट मैंने आउटपुट निकाला. देन सेकेंड, पहले हम लोग उस सेकेंड पॉइंट को हाईलाइट करते हैं. उसमें 3 स्पेसिंग दिखानी है, 1 2 3. ये हो गया दूसरा पॉइंट अपना. तो इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं, 1 2. ओके, इसका भी मिल गया. नाउ थर्ड वन, अभी थर्ड देखना पड़ेगा. तो थर्ड में कैसा है कि आपको थर्ड पॉइंट पहले हाईलाइट करना पड़ेगा. तो ये रहा थर्ड का फर्स्ट आउटपुट और वहां से स्पेसिंग 1 2 3. तो यहाँ पे आ गया आपका सेकेंड पॉइंट. तो पहले क्या करेंगे हम लोग? सिमिलरली कनेक्ट कर लेंगे. तो ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कनेक्ट किया और ये यहाँ पे सेकेंड पॉइंट कनेक्ट किया. So we get a proper structural diagram. Now similarly look at over here. Initially we need 3 speeds. So what we have drawn? We have drawn 3 gears over here. So we can get a 3 speeds. ठीक है, टोटल हमें कितने वेरिएशन चाहिए? 6 वेरिएशन चाहिए. तो जब ये 3 एक साथ मिल जाएंगे तो कितने वेरिएशन आ गए? 3 वेरिएशन आ गए. ठीक है, तो इसके लिए ए डैश, बी डैश, सी डैश, तो 3 स्पीड मिल गए. अभी रिमेनिंग कितने हैं? तो 3 स्पीड. तो ये 3 स्पीड आपको कैसे मिल जाएंगे? इफ यू डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इनपुट्स यू कैन गेट अ सिंगल हाईएस्ट स्पीड. और रिमेनिंग जो 2 है वो यहाँ पे कैलकुलेट होता है, डी डैश, ई डैश. ओके, आई होप इट इज क्लियरिंग टू, थोड़ा सा समझ में आ रहा है आप लोगों को. ओके, नाउ यहाँ पे 3 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. ओके, तो
अभी एक देखते हैं एग्जांपल 3 स्टेज का भी। सो फर्स्ट स्टेज, ये रहा फर्स्ट स्टेज अपना, देन ये रहा सेकंड स्टेज, और ये रहा अपना थर्ड स्टेज। तो ये 3 स्टेजेस है। सो फर्स्ट स्टेज में क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये आपका फर्स्ट स्टेज है, सॉरी कलर के हिसाब से जाते हैं सो दैट इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये रहा स्टेज नंबर 1, then this one is the stage number 2, and this one is stage number 3. Okay, so let's see stage के हिसाब से हम लोग पहले देखते हैं। So in stage number 1, the outputs we needed 2 and the spacing between each output is 1. Okay, तो इनपुट यहाँ पे कितने भी इनपुट हो जाए, यहाँ पे आपके आउटपुट कितने आने वाले हैं, 2। सो लेट्स ड्रॉ 2 आउटपुट, एक ड्रॉ कर लिया, उसमें बाद में स्पेसिंग 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्पेसिंग है यहाँ से यहाँ पे 1 यूनिट है, सो वी कैन अचीव आवर फर्स्ट वन, that is we get 2 output and the spacing between that is 1. Okay, so now we are in second stage. तो सेकेंड स्टेज में क्या है कि आपके पास अभी दो इनपुट्स है, आई विल जस्ट मार्क इट वंस अगेन। ओके, 2 इनपुट्स है, तो कितने आउटपुट, हर इनपुट पे कितने आउटपुट चाहिए आपको, 2 आउटपुट चाहिए, और उसमें स्पेसिंग कितना है, 2 का स्पेसिंग है। ओके, तो पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये यहाँ से ऊपर ले लिया, सिंपल जो प्रॉपरली नियरेस्ट है उसको हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से स्पेसिंग 2 का आना चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो गया अपना 2 का स्पेसिंग, ये हो गया इसका आउटपुट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ड्रॉ इट प्रॉपरली, ये हो गया इसका आउटपुट। ठीक है, अभी दूसरा जो है उसका भी आउटपुट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट इंडिकेट कर लिया, इसमें से 2 स्पेसिंग दिखाना है, तो इतना 2 स्पेसिंग आता है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। तो अपना स्टेज 2 क्लियर हो गया। नाउ स्टेज 3, अभी स्टेज 3 पे जाना है, तो इनिशियली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मिनिमम, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसका रिक्वायरमेंट है कि हर इनपुट का 2 आउटपुट निकलेगा और उसका स्पेसिंग रहेगा 4। ठीक है, 4 स्पेसिंग है, तो इसका मतलब है कि हर एक के 2 आने वाले हैं। ठीक है, तो हम मिनिमम आउटपुट्स कितने आने वाले हैं, टोटल आउटपुट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आता है 2 3 सॉरी 2 3 8। सो 8 आउटपुट्स हमें मिलने वाले हैं, ये है 8 स्पीड मैकेनिज्म। ओके, तो 8 स्पीड कैसे मिलेंगे, फर्स्ट ये रहा मेरा फर्स्ट इनपुट। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ फर्स्ट के लिए, तो ये मैंने फर्स्ट के लिए ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ से स्पेसिंग कितना उन्होंने बताया है, 3 का स्पेसिंग बोला है, तो यहाँ से लेके 3 का स्पेसिंग मैंने, सॉरी 4 का स्पेसिंग बोला है, तो ये 4 स्पेसिंग डाल दिया, मुझे मिल गया ये पॉइंट, तो ये मैंने कनेक्ट कर लिया, तो ये मिल गया मेरा फर्स्ट वन। नाउ वी विल ड्रॉ फॉर सेकंड वन। तो सेकंड में आपका ये सेकंड पॉइंट है, ये रहा आपका सेकंड पॉइंट, इसको हम लोग पहले कनेक्ट करेंगे, ये पॉइंट हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको कनेक्ट कर दिया, सिंपल है, वेरी सिंपल है। आपको एक बार इसका
ये समझ में आ गया? तो इट्स वेरी सिंपल, 1 स्पेसिंग, 2 स्पेसिंग, 3 स्पेसिंग, 4 स्पेसिंग। तो ये हो गया अपना सेकेंड पॉइंट। सिंपली जो जितने नंबर ऑफ आउटपुट है उतने हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें लगने वाले हैं एज पर द स्पेसिंग। ठीक है। सो नेक्स्ट फॉर थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट हम लोग सिमिलरली ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट पहले हाईलाइट करता हूँ, इस पॉइंट से निकलने वाला है। ठीक है। तो यहाँ से स्पेसिंग 4 पहले से डाल देता हूँ, 1 2 3 4। तो ये मिल गया सेकेंड पॉइंट। वी कैन कनेक्ट इट। एक ये यहाँ से गया, दूसरा यहाँ पे आ गया, और लास्ट जो पॉइंट है बचा है तो उसको ड्रॉप पहले हाईलाइट करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका लास्ट पॉइंट, जिससे 4 स्पेसिंग देना है, 1 2 3 और 4। तो ये हो गया अपना लोवेस्ट स्पीड। ठीक है। तो यहाँ से ये गया और ये यहाँ से यहाँ पे गया। तो आपको मिल गया N1 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 और N8। ओके। सो सिमिलरली यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रक्चरल डायग्राम। तो यहाँ पे 3 स्टेज पे देखना है। तो फर्स्ट स्टेज पे 2 गियर आएंगे विच नीड टू 4 आउटपुट आने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट 2 स्पीड डिफरेंट आते हैं, तो ये 2 डिफरेंट स्पीड विच इज कनेक्टेड बाय बी ए डैश बी बी डैश। तो यहाँ से हमें 2 ही स्पीड मिलेंगे। तो आउटपुट कितना सेकेंड स्टेज में कितना होना चाहिए, 4 आउटपुट होने चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, उसको 2 गियर और ऐड कर दिए, so that when it connected with the C dash and D dash, it will give 2 more speeds. Okay. और टोटल कितने आने चाहिए, ये 8 आने चाहिए। when you get variation you will definitely find out the 8 speeds. Okay. तो नेक्स्ट वेरिएशन जो है वो है ई ई डैश और एफ एफ डैश। तो आउटपुट आपका उसके हिसाब से मिलेगा। लास्ट वन दैट इज आल्सो 3 स्टेज वन, बट इसमें नंबर ऑफ जो आउटपुट है वो ज़्यादा है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो कितना आता है 12। सो 3 स्टेज 12 स्पीड का ये स्ट्रक्चरल डायग्राम है। And the gearbox which is given over here, it is a 3 stage 12 speed out. Okay. So first of all as we know 3 into 1, so एक के 3 स्पीड आने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 3 स्पीड मार्क कर लिए, जिसका डिस्टेंस रहेगा 1 स्पेसिंग, तो वो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। सेकेंड स्टेज में हर एक के 2 आउटपुट निकलने वाले हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टोटल 6 आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 आउटपुट है। स्पेसिंग इज बिटवीन R3, तो 6 है। तो क्या कर दिया हमने, ये फर्स्ट पॉइंट लिया, देन सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ यहाँ पे है और सिक्स्थ यहाँ पे है। तो ये इसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। नाउ व्हेन वी कन्वर्टिंग स्टेज 2 टू स्टेज 3 पे जाएंगे, तो उसमें हर इनपुट के 2 आउटपुट निकलने वाले हैं। मतलब 6 इनपुट के 12 आउटपुट्स निकलने वाले हैं, जो यहाँ पे हम लोगों ने शो किए हैं। ओके। और इसमें से स्पेसिंग है, हर आउटपुट में जो स्पेसिंग है वो 6 का स्पेसिंग है। ओके। सो अकॉर्डिंग टू दैट we have drawn a structural diagram. Similarly you can see gear arrangement. Okay. So as I previously explained how to draw a structural diagram, I hope everybody has understood it properly, and they can understood this structural diagram as well. Also they can easily understood the gear spacing, gear layout also. Okay.
So it will help you to understood the what actually speeds we get, or what are the range of the speeds that we can get from the this gearbox. Okay, so I hope you can understood how to draw a structure diagram and how to draw a layout. So these four standard layouts or structure diagrams you can do by heart, so that you can easily understood the way it can be drawn. Okay, so in next lecture I will conduct two more problems so that you can understand it very well. Okay, so thank you very much for joining this lecture. uh, I hope I have already shared theory notes in a first lecture or previous lecture. uh, you can refer the theory notes. uh, it describes the proper uh, question and answer, why we needed structure diagram, why it is required. So these questions are answered over there properly, because we have already discussed. But still, if anybody wants that notes, that can be shared in a description box. You can download it and you can start solving assignments. Okay, so thank you very much. I will in next lecture we will conduct one more problem so that you can understood it more practically. Okay, so thank you.